अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Am I clear? वालेकुम जी अस्सलाम। बिल्कुल सही है। यस Okay. Let's begin our 52nd session of Ar-Rahiq al-Makhtum, the Seal Nectar, biography of our noble Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Last that we did was post Hudaybiyah की जो hostilities चल रही थी और invasion of Ghaba और Dhi Qarad, that is what we concluded. Inshallah today हम start करेंगे the conquest of Khaybar. Conquest of Khaybar around Muharram 7th after Hijri. We are on page 487. So Khaybar was a spacious and strongly fortified territory, studded with castles and farms lying at a distance of 60 to 80 miles north of Medina. It is today a village known for its unhealthy climate. Khaybar जो है वो बड़ा ही spacious, बहुत वसी और strong fortified territory था और उसमें castles थे, farms थे, forts थे और एक distance उसका जो था approximately 60 to 80 miles मदीने के north में था और आज वो है एक वेल नोन विलेज है लेकिन अनहेल्दी क्लाइमेट वाला है वो एरिया. द रीजंस फॉर द बैटल. आफ्टर द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया द मेजर पार्टी ऑफ द एंटी इस्लाम tripartite, namely the Quraysh, was neutralized. The Prophet ﷺ therefore considered it appropriate to resolve the affairs concerning the other two parties of Majd tribes so that peace and security can prevail and the Muslims can devote their time and effort in propagating the message of Allah Azza wa Jal and calling people to embrace it. अभी हम जानते हैं कि ये जो ट्रायंगल बना हुआ था ना एंटी मुस्लिम्स का, जो कुरैश, यहूद और जो ट्राइब्स थे आसपास के जो ट्राइब्स थे, अभी ये नज्द ट्राइब्स का डिस्कशन हो रहा है यहाँ पर. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि इन लोगों को डील करेंगे तो फिर ये होगा कि हम लोग हमारा जो मेन मकसद है जो कि दीन इस्लाम का मैसेज पहुंचाना, दावा करना, उसके ऊपर हम अच्छी तरह से फोकस कर सकते हैं. अगर ये तीन पार्टी बारी बारी या मिलकर अटैक और इंटरसेप्ट करें कारवाज और परेशान करें तो उसमें जो है डाइवर्शन हो जाता है अटेंशन का. तो इसीलिए इनके साथ डील करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गौर फिक्र करा करते थे कि हाउ टू मैनेज देम. Khaybar itself had always remained a hotbed of intrigue and conspiracy, and the Jews had always used it as a source of military provocation and as a center of instigation, so it was given priority by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. अभी खैबर एक ऐसी लोकेशन में था या ऐसी जगह में था जिससे कि ये जो कॉन्स्पिरेसी या जो प्लॉट्स वगैरह जो ये लोग बनाया करते थे उसमें बहुत यूज की जगह थी और मिलिट्री का सोर्स था जहां से वो लोग लोगों को भड़काने का, फितना फैलाने का काम कर सकते थे. तो the Jews of Khaybar, united by an ancient alliance with the Confederates, provoked Bani Qurayza to practice treachery, maintain contacts with Ghatafan and the other Arabs who were hostile to the Muslims, and they even devised a plot on the Prophet's life. In fact, the continual afflictions that the Muslims sustained were primarily attributable to the Jews. यानी अभी हमने देखा पिछले हमारे सेशंस में किस किस तरीके से कैसे अलग अलग कुंबे, अलग अलग जो एंटी इस्लामिक लोग थे उन लोगों के साथ यहूद ने हाथ मिलाए और डिफरेंट मुख्तलिफ प्लान बनाए. तो ये जो यहूद थे खैबर के, इन्होंने पहले कॉन्फेडरेट्स के साथ हाथ मिलाए, बनी कुरैजा के साथ हाथ मिलाए, फिर दगाबाजी का प्लान करके मुस्लिम्स और सहाबा का कत्ल किया, फिर गताफान के साथ कांटेक्ट किया, दूसरे अरब्स के साथ कांटेक्ट किया जो कि मुस्लिम्स के दुश्मन थे, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की भी प्लानिंग कंटिन्यूसली करते रहे. In fact, the continual afflictions that the Muslims sustained were primarily attributable to the Jews. यानी ज्यादा जो हम लोग देखें जितना भी नुकसान या फाइट्स या जो ट्रेचरी, धोखाधड़ी वाली इंसिडेंट्स हुए हैं, इसमें कहीं ना कहीं जाके ये यहूदों का हाथ जरूर था. Envoys were repeatedly sent to them for peaceful settlement, but all in vain. Consequently, the Prophet sallallahu alaihi wasallam came to the conclusion that a military campaign was needed in order to solve the problems. यानी भले मैसेंजर्स भेजे जाते थे कि भाई कोई सुलह हो जाए, कोई बात हो जाए, कोई म्यूचुअल अग्रीमेंट हो जाए जिससे कि ये यहूद जो है
है या जो उनकी नफरत है या जो उनके खुराफाती प्लान मुसलसल चलते रहते हैं, उसमें कुछ कमी पेशी हो जाए या वो ख़त्म हो जाए। लेकिन आप यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी भी कोशिशें कर ली, लेकिन वो बाज नहीं आते थे। तो फिर जो आखिरी हल बचता था वो क्या था? मिलिट्री एक्शन, कि अब जो है ताकत से काम चलाना पड़ेगा। ये लोग जो हैं बाग या सुलह वाले लोग नहीं नजर आते। Headed to Khaybar. Ibn Ashaq said, when Allah's messenger came back from Al-Hudaybiyah, he resided in Medina during the month of Zulhijjah and part of Muharram. Then he left at the end of Muharram for Khaybar. अभी according to Ibn Ashaq, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया से लौटे मदीना में, और ये जुलहज का महीना था और कुछ हिस्सा मुहर्रम का भी था। फिर एंड ऑफ मुहर्रम में वो खैबर के लिए रवाना हुए। Interpreters of the Noble Quran suggest that capturing Khaybar had been a divine promise implied in Allah's words. यानी खैबर को फतह करना या कैप्चर करना जो है वो अल्लाह की तरफ से एक इशारा भी आया था वही की नाजिल में, सूरह 48 वर्स नंबर 20। Allah has promised you abundant spoils that you will capture and he has hastened for you this. यानी ये जो है कैप्चरिंग, ये खैबर की तरफ इशारा कर रहा है। Referring to the peace treaty of Hudaybiyah and the surrender of Khaybar, the Munafiq and people weak of heart had hung back from joining the true Muslims in the Hudaybiyah campaign. So now Allah the Almighty revealed the following words to his Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मुनाफिक जो हैं या जो दिल के कमज़ोर, ईमान के कमज़ोर लोग हैं, वो लोग जिहाद क़िताल में हिस्सा नहीं लेते। तो हुदैबिया के कैंपेन में भी मुनाफिक जो नहीं आए थे। अब इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए कुरान की आयत सूरह 48 वर्स 15 रिलीज हुई थी। Those who lag behind will say, when you set forth to take the spoils, allow us to follow you. They want to change Allah's words. Say, you should not follow us. Thus Allah has said beforehand. Then they will say, nay, you envy us, nay, but they understand not except a little. यानी ये लोग जो हैं माले गनीमत में अपना हिस्सा लेने के लिए आगे आगे होते हैं, लेकिन जब इनको अपनी जान, जिसे कहते हैं ना जिहाद के लिए ऑफर करने की बारी आती है, तो वो पीछे पीछे रहते हैं। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने पहले ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज का इशारा दे दिया था। और ये जो है ये लोग फिर भी जब इनको मना किया जाए कि आपका हिस्सा नहीं बनेगा इसमें माले गनीमत में, तो वो उनसे कहते हैं कि आप हमसे हसद रखते हो, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे टाइप वाली सिचुएशन, कि ये लोग खुद हिस्सा नहीं लेंगे, कंटिन्यूसली दुश्मनी करेंगे, लेकिन जहां इनका जाती मफाद आता है वहां पर ये पहुंच जाते हैं। The number of soldiers in the army. The Prophet only invited those who are willing to fight in the cause of Allah to accompany him in his march against Khaybar. Only 14,000 men swore allegiance and responded to his call. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जंग का ऐलान किया और फिर लोगों को कहा कि जिहादी क़िताल के लिए अल्लाह की खातिर ज्वाइन करें, मार्च करें खैबर में। और सिर्फ 1400 आदमी जो हैं उन्होंने अग्री किया और रिस्पॉन्ड किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कॉल को। Meanwhile, Siba bin Arfata al-Ghifari radiyallahu anhu was chosen to run the affairs of Medina in the Prophet's absence. Another incident of high significance during the same time was the acceptance of Islam by Abu Huraira radiyallahu anhu, a venerable Muslim scholar and an authentic narrator of the prophetic traditions. अभी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खैबर के लिए रवाना हो रहे थे, तो एक सहाबा सिबा बिन अरफता अल-ग़िफ़ारी रदियल्लाहु अन्हु मदीने में इंचार्ज बने। और एक जो बहुत ज़बरदस्त किस्सा हुआ इस दौरान वो ये था कि अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु ने, जो कि बहुत अच्छे नोन मुस्लिम स्कॉलर और काफ़ी ज़्यादा हदीस के नरेटर हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। द हिपोक्रेट्स अलर्ट द ज्यूज़। अभी जो मुनाफिक है वो ज्यूज़ को आगाह कर रहे हैं। Munafiq, noticing the fresh Islamic intentions, began to alert the Jews of the imminent military activities. Their chief, Abdullah bin Ubay, sent a message to the Jews of Khaybar, warning them against the dangers approaching them and encouraging them to resist the Muslims as they outnumbered the latter and were better equipped. On hearing the news, the Jews dispatched Kinana bin Abdul Huqaiq and Hawda bin Qais to their former allies, the tribe of Ghatafan, requesting military assistance, promising to grant them half the yield of the fruit that their farms would yield if they managed to beat the Muslims. अभी आप देखिए फिर से मुनाफिक, यहूद,
मक्कन्स के जो कुरैश है, ये सब एक ही हैं, एक दूसरे के सपोर्टर्स हैं, एक दूसरे के अलाइज हैं, एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं। तो ये जब देखते हैं कि मुस्लिम्स अपनी तैयारी कर रहे हैं, फटाफट उन्होंने मुनाफिक ने यहूद को आगाह कर दिया। उसका जो मुनाफिक का जो चीफ अब्दुल्ला बिन उबय ने मैसेज भेजा खैबर में यहूद को कि आपके पास ये खतरा आ रहा है और मुस्लिम्स के इतने इतने नंबर हैं और वो लोग ज्यादा अच्छी तरह से बेटर इक्विप्ड हैं। इमीडिएटली यहूद ने अपने दूसरे अलायंस जो थे किनाना बिन अब्दुल हुकैक और हौदा बिन कैस को कांटेक्ट किया। ये गताफान की ट्राइब्स थी और उनसे मिलिट्री असिस्टेंस मांगा और फिर उनको बदले में क्या प्रॉमिस किया कि उनकी जो हाफ द यील्ड ऑफ द फ्रूट, यानी उनकी जो फ्रूट्स का जो एग्रीकल्चर है या जो उनका माल है वो हाफ उनके साथ शेयर करने का वादा किया। अब आप देखें, बुरे लोग एक दूसरे के साथी, अच्छे एक दूसरे के साथी, ये मिक्स नहीं होंगे, ये फिल्टर होंगे और ये फिल्टरिंग का प्रोसेस आपकी लाइफ में हमेशा चलता रहेगा। कई बार आप देखेंगे, आई एम श्योर अभी आप like if I talk about this you can relate it now, जैसे ही आप दीन इस्लाम की तालीम या खैर की तरफ अपना कदम रखते हैं, जैसे ही आप कुरान से जुड़ते हैं, जैसे ही आप हिजाब लेना शुरू करते हैं, जैसे ही आप सलाह की पाबंदी करना शुरू करते हैं, विद इन योर फैमिली, विद इन योर फ्रेंड्स, देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल जो कि आपको डिस्करेज करेंगे, जो कि आपका मजाक उड़ाएंगे, जो कि आपको मॉक करेंगे, अभी तुम इतना कहाँ दीन में जा रही हो, इतना तो सख्ती नहीं है, तुम तो एक्सट्रीमिस्ट हो गई हो, एंड ब्ला 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 ब्ला, यू विल हियर ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। आपको बहुत दुख भी होगा। कई दोस्त जो आप सोचते होंगे कि आपके बहुत करीब हैं और आपके बहुत खास हैं, उनसे ऐसी बातें सुनकर आपका दिल छोटा भी होगा और आप बहुत तन्हा और अकेला फील करेंगे। लेकिन यकीन जाने, सुभान अल्लाह, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में ये आपके लिए खैर है। ये आपके लिए अल्लाह ताला फिल्टर कर रहे हैं। जो लोग आपके लिए, आपकी दुनिया, आपकी कब्र और आपकी आखिरा के लिए अच्छे हैं, वो लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह ताला, भले वो एक या दो हों। बट वो जो हुजूम है ना, जो आपको दीन से दूर कर रहा है, जो आपको अल्लाह से कट कर रहा है, उनसे आपका किनारा कश हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। और ये फिल्टरिंग होना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि ये एक इमोशनल ट्रॉमा है। आप अपने आप को बहुत अकेला महसूस करेंगी क्योंकि आप उनकी महफिलों में नहीं जा रही हैं। आपका नाम जो है उनकी गैदरिंग्स में से निकल जाएगा, उनके सारे इवेंट्स में से आप अपने आप को बहुत अलग महसूस करेंगी। आपको लगेगा कि आप कट गई हो, लेकिन आप यकीन करें ये आपके लिए खैर है। इस अकेलेपन और इस तन्हाई और ये इक्का दुक्का दीनी दोस्तों के अंदर आपके लिए खैर है। लेकिन इस चीज का एहसास हमें थोड़े टाइम बाद होता है। उस वक्त हम अपने आप को बहुत बहुत मिस्कीन, बहुत कमजोर सा महसूस करते हैं। बट यकीन जाने ये आपके लिए खैर है। ये आप मेरी बात ध्यान में रखें क्योंकि ये मरहला आपकी जिंदगी में हर बार आता रहेगा। बार बार आपको अकेलापन महसूस होगा, लेकिन नो प्रॉब्लम, जिसका साथी अल्लाह अज़्ज़ा वजल है वो कभी अकेला और तन्हा और कमजोर नहीं रहता। सूनर और लेटर आप देखेंगी कि आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपकी आखिरा के लिए ये स्टेप कितना जरूरी था। और जब कभी भी आप ऐसे मौके पर आए तो आप याद करें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सीरा और ये स्टोरीज, जहां पर अपने लोगों से उनको कट कर दिया गया था, जिला वतन कर दिया गया था, किस तरीके से कितनी अजियत और तकलीफें दी गई थी, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको कैसे संभाला, कैसे उनको उरूज दिया। तो कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करना। एंड अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे 10 आपके दोस्त या 100 आपके दोस्त ना हो, वो 1 या 2 दोस्त हो जो आपको अल्लाह से जोड़े, वो काफी है। एंड बाकी सारी दुनिया को हटा दें, हमारे लिए सिर्फ अल्लाह काफी है। The number of soldiers in the army. All right, the road to Khaybar. The Prophet marched by the route of the Isr mountain and then went forward with the army until he halted in a valley called Ar-Raji. अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम how many soldiers? Around 1400 soldiers के साथ चल पड़े और उन्होंने कौन से रूट लिया था? इसर माउंटेन का। इसर माउंटेन का उन्होंने रूट लिया था और कहाँ पर रुके थे? एक जगह, एक वैली जिसका नाम था अर्रजी। उन्होंने उधर कैंप किया, which was a day and a night's journey before the tribe of गताफान। यानी ये जो जगह थी, ये एक दिन और एक रात की जर्नी थी गताफान की ट्राइब के लिए भी। This was done so as to prevent them from strengthening the Jews. The accompanying guides led him to an intersection that branched out into many different directions. All leading to his destination, he abstained from following the first 3 roads on grounds of their ominous names and chose the 4th for its favorable indication. यानी अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कौन से रूट से जाना है, कैसे जाना है, कब कैंप करना है, सारा कुछ ये मिलिट्री स्ट्रेटजी हुआ करती थी, राइट। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किए, उन्होंने अर्रजी वाला जो है वो जगह पे कैंप किया, और गताफन ट्राइब जो यहूद थे, यहूदों के साथ थे, उनके लिए वो एक दिन और एक रात की जर्नी थी। ये इसीलिए उन्होंने किया था कि यहूद को जो है वो कमजोर कर सकें, बिकॉज वो ट्रैवलिंग की जो फटीग होगी और टायर्डनेस होगा। उसके अलावा जो गाइड थे उनके, उन्होंने वो ऐसे इंटरसेक्शन पे उनको लाके छोड़ा था जहां पर से डिफरेंट डायरेक्शंस होते थे। तकरीबन 3 रास्ते होते थे, 3 से 4 रास्ते होते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथा वाला जो रास्ता है वो सिलेक्ट किया। It is noteworthy that some interesting incidents occurred during the Muslims march towards Khaybar. अभी ये खैबर पे जाते वक्त कुछ एक दो बड़े इंटरेस्टिंग किस्से हुए। वो क्या किस्से थे? पहला, it has been narrated on the authority of Salama bin al-Aqwa radiyallahu anhu, who said, we marched to Khaybar with Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam journeying during the night. One of the men said to my brother Amir, will you not recite to us some of your verses of poetry? Amir, so he began to chant his verses to urge the camels. अभी सलमा बिन अल अक़वा रदियल्लाहु अन्हु बताते हैं कि वो खैबर में जब जा रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो एक साहबा ने उनके भाई आमिर को कहा, क्या तुम हमारे लिए अपनी पोएट्री में से कुछ रिसाइट करोगे? तो उन्होंने रिसाइट करना शुरू किया। ओ अल्लाह, if you had not guided us, we would have neither been rightly guided, practiced charity, nor offered prayers. We wish to lay down our lives for you. So forgive us our lapses and keep us firm when we encounter our enemies. अल्लाह की हम्दो सना करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जिसको हिदायत दी तो वो जो है वो ही सदका कर सकता है, और मतलब अगर हिदायत ना हो तो आप सदका भी नहीं कर सकते, आप सलाह भी नहीं पढ़ सकते, इबादत भी नहीं कर सकते। फिर कहते हैं कि हम हमारी जो जानें वो आपके खातिर हमने लगा दी है, हमें माफ करें हमारी कोताही के लिए, और हमें जो है इस्तिकामत दे, हमारे कदम जो है वो साबित कदम रहे जब हम दुश्मनों का सामना करें। Bestow upon us peace and tranquility. Behold, when with a cry they called upon us to help. हमारे दिलों में सुकून और सकीनत उतारें, और उसके बाद जब हमें मदद, आसमा प्लीज आप अपना माइक म्यूट करें। Okay, bestow upon us peace and tranquility. Behold, when with a cry they called upon us to help. यानी हमारे दिलों में सुकून और सकीनत उतारें, और उसके बाद हमारे को जो बुलाते हैं, when people are crying for help, हम उधर यानी we should be there. Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said, who is this driver of the camels? They said, it is Amir. He said, Allah will show mercy to him. A man said, martyrdom is reserved for him. O Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, would that you had allowed us to benefit ourselves from his life. यानी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो उन्होंने पूछा कि कौन है ये जो कैमल को राइड कर रहा है और इतने खूबसूरत कलिमात यानी ही was saying, तो लोगों ने कहा कि ये आमिर है। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला इस पे रहम करेंगे और इसके लिए शहादत जो है वो रिजर्व्ड है। ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वुड दैट यू हैड अलाउड अस टू बेनिफिट आवरसेल्व्स फ्रॉम हिज लाइफ। तो उनका रिएक्शन क्या था कि आपके वजह से हमारी जो जानें हैं, हमारी जो जिंदगी है वो काम आई। यानी ये लोगों का आप देखें एटीट्यूड किस तरीके का होता था कि ये अपनी जान जो है अल्लाह की खातिर फॉर द सेक ऑफ अल्लाह ऑफर करते थे और अपने आप को खुशकिस्मत समझते थे। यानी अपनी सबसे प्यारी चीज क्या होती है इंसान की जान होती है, राइट। अब ये जानों को देने के लिए उतावले होते थे, जानों को देने के लिए खुशी महसूस करते थे, एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते थे, एंड सुभान अल्लाह दे फील कि इनकी लाइफ का जो पर्पस है वो पूरा हुआ, इनकी लाइफ जो है वो बेनिफिशियल साबित हुई। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह की खातिर शहीद हुए। नंबर 2, in a spot called As-Sahaba, not far from the Khaybar, the Prophet ﷺ observed the Asr prayer, and then he called his companions to bring whatever food provisions they had with them. What they brought was too little to satisfy them all, so the Prophet ﷺ took it by his hand, and it immediately grew in quantity, so they all ate to their fill. अभी एक जगह थी जिसका नाम था अस-सहबा, ये खैबर के करीब ही थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की सलाह पढ़ी और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि खाने के लिए जो है वो ले आओ। जब खाना लाया गया तो वो बहुत थोड़ा था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ में लिया, जलेते ही साथ उसकी क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो गई और सब लोगों ने बहुत पेट भर के खाया। अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज आल्सो वन ऑफ द रिकॉर्डेड मिरेकल्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का।
Shortly afterwards, he and the others rinsed their mouths and performed the Maghrib prayer without performing ablution. He did the same for the Isha prayer. अभी इसके बाद उन लोगों ने हाथ अपने धोए और कुल्ली की और उसी वजू में मगरिब की सलाह पढ़ी और उसके बाद यही सेम मामला ईशा में भी हुआ. As they reached above Khaybar and looked down upon it, he said, "Halt!" The army halted, and he said, अभी वो जैसे ही पहुंचे खैबर के और नीचे उन्होंने देखा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, हॉल्ट यानी रुक जाओ, और आर्मी जो थी उनकी रुक गई. फिर उन्होंने कहा, ओ अल्लाह, Lord of the seven heavens and what they cover, Lord of the seven earths and what they include, Lord of the devils and what they mislead. Indeed, we ask you for the good of this town, the good of its people, the good that is in it. We seek refuge with you from the evil of this town, the evil of its people, and the evil that is in it. Proceed in the name of Allah Azza wa Jal. यानी ये सुभान अल्लाह ब्यूटीफुल दुआ है. जैसे ही आप कहीं किसी जगह पे जाओ, जैसे भी वो खैबर में ऊपर थे, नीचे ओवरलुक कर रहे थे, तो उन्होंने प्यारी सी अल्लाह से दुआ की. आप देखें हर मौके पर, हर जगह पर किसके साथ कनेक्शन क्रिएट किया जा रहा है, किससे मदद मांगी जा रही है, किसकी हम्द सना हो रही है, किसका शुक्र किया जा रहा है, ओनली अल्लाह अज़्ज़ा वजल. अभी फिर से उन्होंने बहुत प्यारी सी दुआ की कि अल्लाह सातों आसमान और जो सातों जमीन आसमान को कवर कर रहा है, सातों जमीन और जो इस जमीन के अंदर इंक्लूड है, जो डेविल्स और जो मिसलीड करने वाली चीजें हैं, तो हम जो है सिर्फ खैर मांगते हैं, खैर लोगों की, खैर जगह की, और अल्लाह की पनाह चाहते हैं सारे शर से जो इस टाउन में है, और सारे शर से जो इंसानों में है, और सारे शर जो यहाँ पर मौजूद हैं. और फिर बिस्मिल्लाह करके अल्लाह का नाम लेके प्रोसीड करते हैं. The Muslim army surrounds Khaybar. The Muslims camped and slept that night near Khaybar without the Jews realizing their presence. अभी रात के वक्त उन्होंने कैंप किया और खैबर की तरफ आए और यहूदियों को इनकी मौजूदगी का पता भी नहीं चला. In the morning after the prayer they mounted and proceeded. सुबह में फिर वो सवार हुए और निकल पड़े. The Muslims encountered the Jews while they had come out to perform their jobs with their axes, spades and strings, driving their cattle along. अब ये ज्यूस जो हैं बाहर निकले अपने रेगुलर काम के लिए, अपने उन्होंने कुल्हाड़ियाँ ले ली और फावड़े ले लिए और वो स्ट्रिंग्स, धागे और वो रस्सियाँ ले ली अपने कैटल्स के लिए, और they began to shout in surprise, Muhammad has come along with his force. अब वो एकदम शॉक हो गए. अर्ली मॉर्निंग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आर्मी के साथ पहुंच गए थे, तो उन्होंने चिल्लाना शुरू किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने फोर्स के साथ आ गए हैं. Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam said, Allah is great, Khaybar is ruined. Allah is great, Khaybar is ruined. Allahu Akbar, Khaybar जो है वो तबाह हो गया है. Allahu Akbar, Khaybar तबाह हो गया. Behold, when we descend amidst the people, it will dawn a bad day for those who have been warned, but have not taken heed. यानी कि ये जो लोग थे, जैसे ही दिन की शुरुआत हुई, ये उनके दिन की एक खराब दिन की उनके लिए शुरुआत हुई है. वो कहते हैं हमने आपको वार्निंग नहीं दिया था पहले. The fortresses of Khaybar. Khaybar was divided into two sections. The first containing 5 fortresses or castles. खैबर जो है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ था. जो पहला था उसके अंदर 5 किले थे. पहला था किला नाइम, फिर किला था असाब बिन मुआत, देन अजुबैर, देन उबय और फिर अन-निजार. ये 5 किले थे खैबर के फर्स्ट सेक्शन में. The first 3 were in an area known as an-Natah. The remainder were in a section called Ash-Shaq. The second section of the city was called Al-Katibah and it had 4 fortresses. अभी ये जो पहले 3 जो किले थे वो कौन सी जगह में थे? अन-नता में थे. और दूसरे जो 2 थे वो कौन सी जगह में थे? अश-शक इधर थे. और दूसरा सेक्शन जो था उसमें सिटी थी जिसका नाम था अल-कतीबा, और इधर 3 फोर्ट्रेसेस थे जिनके नाम थे अल-कमुस, which was the fortress of the family of Abul Huqaiq from the tribe of Abu an-Nadir. अल-कमुस के अंदर कौन सी फैमिली रहती थी? अबुल हुकैक, और वो कौन से कुंबे में से थे? अबू अन-नदीर में से थे. दूसरा फोर्ट्रेस था अल-वतीह और तीसरा फोर्ट्रेस था अस-सुलैम. There were also other fortresses in Khaybar besides this 8. यानी ये 8 के अलावा और भी बहुत सारे फोर्ट्रेसेस थे. But they did not reach the size or fortification of this. लेकिन वो थोड़े छोटे छोटे थे, इसलिए full fledged किले, फोर्ट्रेसेस और कैसल नहीं कहलाते थे. The fighting occurred only in the first section of the city
In the second section, the three fortresses secured themselves and held their fighters without coming out to face the Muslims. अभी ये जो खैबर की जो जंग थी ये सिर्फ फर्स्ट सेक्शन ऑफ द सिटी में थी. सेकेंड सेक्शन का जो एरिया था वो सिक्योर था और जो फाइटर्स थे वो फोर्ट्स के अंदर ही थे. उन्होंने आकर बाहर मुसलमान आर्मी का सामना नहीं किया. द मुस्लिम कैंप. For encampment, the Prophet had chosen a certain area of land which he deemed suitable to serve as the headquarters of his army. However, Hubab bin al-Mundhir radiyallahu anhu, who was a veteran fighter, suggested that they relocate to another place under the requirement of war and for the sake of providing maximum mobility. अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एरिया सिलेक्ट किया जहां पर कैंपिंग लगाई और हेडक्वार्टर अपना बनाया. लेकिन हुबैब बिन अल-मुंदिर रज़ियल्लाहु अन्हु जो बहुत अच्छे फाइटर थे उन्होंने कहा कि किसी और जगह पे चलते हैं क्योंकि रिक्वायरमेंट ऑफ वॉर उस तरीके की है और उनको मोबिलिटी यानी उनकी मूवमेंट जो है वो इजी हो जाए, इसलिए उन्होंने दूसरी जगह सजेस्ट की. Preparing to fight and the good news of victory. When night fell, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Tomorrow I will give the banner to a man who loves Allah and his messenger, and Allah and his messenger loves him." अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को अनाउंस किया कि कल वो ऐसे इंसान को बैनर देंगे जो अल्लाह और अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह और अल्लाह के नबी उनसे मोहब्बत करते हैं. यानी he didn't give the name, उन्होंने सिर्फ एक ऐसा क्लू दिया. अब सुबह में सारे लोग जमा हो गए ये उम्मीद पर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फ्लैग है वो उनको देंगे क्योंकि इतनी बड़ी डिक्लेरेशन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको दिया बैनर? Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, who had an illness in his eyes. So he supplicated for him and the illness vanished. अभी सारे लोग जो है वो रेस कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि भाई हमारा नाम आएगा, हमारा नाम आएगा. लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली बिन अबी तालिब रदियल्लाहु अन्हु को बैनर दिया और अली बिन अबी तालिब रदियल्लाहु अन्हु को आंख की कुछ इलनेस थी, कुछ बीमारी थी. तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ की और उनकी जो इलनेस थी वो गायब हो गई बिइज़्निल्लाह. तो ये भी एक मिरेकल है ऑफ द प्रॉफिट. ही देन हैंडेड द बैनर टू हिम. अली रदियल्लाहु अन्हु ऑन हिज पार्ट प्लेज्ड दैट ही वुड फाइट द एनिमी अंटिल दे एम्ब्रेस्ड इस्लाम. अभी जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दिया तो अली रदियल्लाहु अन्हु ने लिया और फिर उन्होंने प्लेज किया, इरादा किया कि वो दुश्मनों के साथ लड़ेंगे जब तक कि वो इस्लाम कबूल ना कर ले. द प्रॉफिट आंसर्ड हिम सेइंग, proceed upon your way until you enter their midst, then invite them to accept Islam and brief them on their duties towards Allah. I swear by Allah Azza wa Jal that if one person is guided by you, that would surely outweigh the best camels. अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कह रहे कि आप उनके बीच में जाएं, जाकर फिर उनको अल्लाह की तरफ, इस्लाम की तरफ दावा दें, उनको ब्रीफ करें, उनको बताएं ड्यूटीज क्या क्या हैं अल्लाह की तरफ. और कहते हैं कि अगर एक इंसान भी हिदायत पाया जाए आपके थ्रू तो ये आपके लिए बेटर है हैविंग मोर देन बेस्ट कैमल्स. यानी उस जमाने में ओनिंग द कैमल वाज अ वेरी प्रिविलेज्ड थिंग. यानी जो लोग जैसे भी आज की तारीख में हम कहें कि लैम्बोर्गिनी और सम वेरी हाई क्लास हाई एंड कार रखना इज अ वेरी प्रेस्टिजियस स्टेटस को रहता है ना, उस तरीके से उस जमाने में कैमल्स को, बेस्ट कैमल्स को ओन करना बड़ी इज्जत और दुनियावी लिहाज से हाई स्टेटस की बात थी. तो कहते हैं तुम्हारे लिए ये चीज कि कोई तुमसे तुम्हारे जरिए हिदायत पा जाए वो बहुत बड़ी बात है, इसके एवज में कि आपको बेस्ट कैमल्स की पोजीशन दी जाए. The actual operation begins. The Prophet began the campaign by capturing the minor strongholds one after the other. The first fort he attacked was Naim, the first defense line with a strong strategic position. Marhab, the leader of the fort, invited Amir bin al-Aqwa radiyallahu anhu to meet him in combat, and the latter responded. When Amir struck the Jew, his sword recoiled and wounded his own knee, and he died of that wound. The Prophet later said for him, Amir, there is a double reward in the hereafter. He indicated this by putting two of his fingers together. अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी अपनी स्ट्रैटेजी रखी थी कि वो माइनर छोटे छोटे स्टेप्स लेके धीरे धीरे अटैक कर रहे थे. तो पहला अटैक जो था वो नाइम फोर्ट पे था और फिर अच्छी डिफेंस लाइन थी और बहुत अच्छी पोजीशनिंग थी. मरहब जो था, जो लीडर था उस फोर्ट का, उसने आमिर बिन अल-अक़वा को इनवाइट किया कि मेरे साथ आके ड्यूअल कॉम्बैट करो, यानी 1-to-1 कॉम्बैट करो सोर्ड के साथ. तो आमिर ने उनको उस ज्यू को जो है अपनी सोर्ड से अटैक किया और उसकी जो तलवार थी खुद पलटते हुए उसके नी पे
जा लगी, जिस इंजरी की वजह से उसकी कत्ल हो मतलब मौत हो गई। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमिर के बारे में क्या कहा कि तुम्हारे लिए आखिरा में डबल रिवॉर्ड है। उन्होंने अपनी ऐसी दोनों उंगलियों को जोड़ के इशारा किया कि डबल रिवॉर्ड है। Ali bin Abi Talib radiallahu anhu then undertook to meet Marhab in combat and managed to kill him. अभी अली इब्न तालिब जो है वो पहुंचे और मरहब के साथ उन्होंने फाइट की और उसका कत्ल किया। Yasir, Marhab's brother, then turned up challenging the Muslim to a fight, which Az-Zubair radiallahu anhu accepted and killed him on the spot. यासिर जो था मरहब का भाई वो आया चैलेंज करने, उसके साथ किसने फाइट की? अज़ुबैर रदियल्लाहु अन्हु ने। उन्होंने एक्सेप्ट किया उसका चैलेंज और उसको किल कर दिया। फाइटिंग देन ब्रोक आउट बिटवीन द टू फोर्सेस एंड लास्टेड फॉर अ फ्यू डेज, यानी काफी दिनों तक ये टू फोर्सेस अटैक करती रही और कुछ दिनों तक इनकी जंग चलती रही। द ज्यूज शोड करेज एंड प्रूव डिफिकल्ट इवन टू द रिपीटेड रशेस ऑफ द एक्सपीरियंस सोल्जर्स ऑफ इस्लाम, यानी यहूद भी जो है वो बड़े बहादुरी के साथ लड़ते रहे और एक्सपीरियंस सोल्जर्स जो इस्लाम थे उनको फेस करते रहे। However, they later realized the uselessness of resistance and began to abandon the position in Naim and retreated to the fortress of As-Sa'ab, यानी बहादुरी के साथ वो लड़ रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने देखा जब मुसलमान आर्मी को उनके इरादे जो तो हैं वो थोड़े थोड़े पस्त होने लगे, फिर उन्होंने फाइनली अन-नईम को छोड़ के दूसरा जो फोर्ट था असाब उधर पहुंचे, यानी वो जो किला था वो मुस्लिम आर्मी ने फतह कर लिया। Al-Hubab bin al-Mundhir al-Ansari radiallahu anhu led the attack on the fortress of Asab. The Muslims laid siege to it for 3 days, after which the Muslims stormed it. A lot of booty, provisions and food fell into their possession. Al-Hubab bin al-Mundhir al-Ansari radiallahu anhu ने अटैक किया, लीड किया अटैक असाब पे। 3 दिन तक अटैक करते रहे और मुस्लिम्स जो है बड़े अच्छे तरीके से उन लोगों के ऊपर अटैक किया। बहुत सारा माल गनीमत मिला, बहुत सारा खाना, प्रोविजंस मुसलमान के हाथ लगा। The victory came in the wake of the Prophet's invocation to Allah Azza wa Jal to help Banu Aslam in their untiring and daring attempts to capture the fort. यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआ थी मुसलसल, उसके जवाब में अल्लाह ताला की मदद थी और इसीलिए बनु असलम जो है वो जो इतनी मेहनत कर रहे थे अटैक करके कैप्चर करने के लिए फोर्ट, वो कामयाब हुए अल्हम्दुलिल्लाह बिइज़्निल्लाह। During the process of the war operations, extreme hunger struck the Muslims. They lit fires, slaughtered domestic donkeys, and began to cook them. The Prophet inquired about the fires and the cooking. When he was informed, he ordered that they should throw away the meat and wash the cooking pots, forbidding the practice of eating such meat. अभी ये वॉर ऑपरेशन में आपको पता है कि लिमिटेड होता है खाना, लिमिटेड होती है रिसोर्सेज, तो अगेन जो है भूख वाली स्टेज आ गई, हंगर की स्टेज आ गई मुसलमान आर्मी के बीच में। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आग जलाई और डोमेस्टिक डोंकीज जो गधे थे उनको ज़िबा किया और उनको पकाने लगे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंक्वायरी की तो उन्होंने बताया कि वो लोग जो है डोमेस्टिक डोंकी जो है गधे हैं उनको कुक कर रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑर्डर दिए कि उसको फेंक दो, उसके गोश्त को, और अपने पॉट्स को जो धो दो, क्योंकि ईटिंग सच एनिमल इज फॉरबिडन, ममनू है, हराम है खाना। The Jews meanwhile evacuated from An-Nata and secured themselves in Az-Zubair fort, a strong defensive position inaccessible to both cavalry and infantry. अब यहूद जो है वो कौन सी जगह पे पहुंचे, निकले अन-नता में और वहां पर अपने आप को सिक्योर किया Az-Zubair फोर्ट के अंदर, जो कि बहुत स्ट्रांग था, डिफेंसिव था, और उधर घोड़सवार और पैदल चलने वाली आर्मी दोनों के लिए ही एंटर होना मुश्किल था। The Muslims besieged it for 3 days, but in 3 दिन Muslims ने लगातार ट्राई किया मगर कोई फायदा नहीं हुआ। A Jewish spy told the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam about a water source under the surface of the earth that provided them with water and advised that it be cut off in order to weaken their resistance. उन्होंने एक यहूद का जो जासूस था उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्फॉर्मेशन दी कि ये फोर्ट के नीचे जो है सरफेस के नीचे एक पानी का रिजर्वायर या पानी का सोर्स है। तो उन्होंने कहा इस पानी से जो यहूद अंदर जो दुश्मन अपने आप को छुपाए बैठे हुए हैं वो सराब कर रहे हैं अपने आप को, तो इसको अगर आपने पावर सप्लाई कट कर दी तो वो कमजोर पड़ जाएंगे। The Prophet did that, so the Jews came out to engage the Muslims in fierce combat, during which some Muslims and 10 Jews were killed, but the fort was eventually conquered. अभी ये चाल अच्छी रही, जो Jews है, यहूद है, वो बाहर निकले मुस्लिम्स का सामना करने के लिए, फाइट करने के लिए, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह ओनली जो क्या कहते हैं उसको 10 यहूद कत्ल हुए और चंद मुस्लिम कत्ल हुए, एंड फाइनली ये फोर्ट भी मुस्लिम्स ने कैप्चर कर दिया।
Shortly after this battle, the Jews moved to Ubay Fort. अभी वो शिफ्ट होते जा रहे हैं, उबय फोर्ट में चले गए और उधर जाके अपने आप को छुपा लिया. और फिर वैसे ही इवेंट हुआ. द सेम इवेंट्स अकर्ड. द मुस्लिम्स बिसीज्ड. 3 दिन तक उन्होंने कोशिश की. और जो इनके ग्रेट मुस्लिम हीरो थे, अबू दुजाना, सिमक बिन करशाल अंसार दिलानहू, जो वो रेड बैंड पहनते थे, हमने पिछली फाइट्स में भी इनका जिक्र किया था, जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार दी थी, जो रेड बैंड पहन के बहुत अच्छी तरह से फाइट करते हैं, उनका जिक्र ये हो रहा है. तो ये थे लीडर इस टाइम, और ये फोर्ट के अंदर घुस पड़े. फियर्स मिलिट्री ऑपरेशंस हुआ विद इन एंड फोर्स द रिमेनिंग. जो बचे कुछ ज्यूज और यहूद थे उनको भी भगा दिया दूसरे फोर्ट में, जिसका नाम था अन-निजार. अन-निजार बहुत पावरफुल फोर्ट था. यहूद उधर आए और अपने आप को बचाने की या छुपाने की कोशिश किया. Jews came to the established conviction that it was too immune to be stormed, so they considered it a safe place for the women and children. The Muslims, however, were not dejected but dragged on the siege. However, it being situated at an elevated position, the fort was secure. अभी यहूद को ये अंदाजा था कि ये वाला जो फोर्ट है बहुत अन-निजार उसकी पोजीशन थी और जो उसकी लोकेशन थी वो हाई प्लेस थी, तो वो उनकी औरतें और बच्चों के लिए सेफ है, तो उन्होंने अपनी औरतों और बच्चों को उधर रखा. अभी मुस्लिम्स जो हैं वो ट्राई करते रहे. ओके, वो क्या कहते हैं, उनका जो सीज था वो उन्होंने कंटिन्यूस रखा. और ज्यूज जो अंदर छुपे हुए थे वो मुसलमानों के साथ ओपन फाइट करने के लिए बहुत डर रहे थे, इसीलिए वो अंदर से ही एरोज और स्टोन्स को फेंक रहे थे. Considering this situation, the Prophet ﷺ ordered that catapults be used. These proved effective and caused cracks in the walls, providing an easy access into the heart of the forts. यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि ये लोग खुद तो सिक्योर हैं फोर्ट के अंदर, और वो ऊपर से पत्थर और तीर फेंक कर अटैक कर रहे हैं. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑर्डर दिए कि कैटapults यूज हो. कैटapults को क्या कहते हैं उर्दू में? वो जो नहीं होता बच्चे खेलते हैं, ऐसा लकड़ी होती है वी, और फिर उसमें स्टोन लगा के फेंकते हैं, क्या कहते हैं उसे? कैटapult. गुलेल कहते हैं, गुलेल. गुलेर. ओके, गुलेर. तो वो आपको गुलेल. गुलेल. गुनेल नहीं, हिंदी में गुलेर कहते हैं. ओके, तो गैन 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 और आखिर में लाम है, गुलेल. ओके, गुलेल. सो वो जो बच्चे खेलते हैं दैट इज यूज्ड फॉर एज अ टॉय, लेकिन वॉर के एरिया में ना ये बड़े साइज के कैटapults होते हैं, और उसके अंदर जो है ना राउंड बिग रॉक्स, बोल्डर्स जिसे हम कहते हैं ना, बोल्डर्स डाल के वो वॉल के ऊपर जब मारा जाता है विद फोर्स, तो वो वॉल के अंदर क्रैक कर देता है. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप देखें माशाल्लाह, यानी ही वाज सच अ गुड मिलिट्री पर्सन, उनकी स्ट्रेटजी, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना स्ट्रांग था. तो उन्होंने वो लार्ज कैटapults का इस्तेमाल किया और वॉल के अंदर क्रैक्स पैदा हो गई, और फिर उसके बाद वो अंदर फोर्ट के घुस पाए. अन-निजार जो बहुत स्ट्रांग फोर्ट है उसको क्रैक करके उसके हार्ट ऑफ द फोर्ट के अंदर मुस्लिम्स जो हैं वो घुस पाए. Providing an easy access into the heart of the fort, chaos ensued among the Jews and they fled in all directions, leaving behind the women and children. अभी भगदड़ मच गई. यहूद जो हैं वो हर डायरेक्शन में भागने लगे. उन्होंने अपनी औरतें और अपने बच्चों की भी फिक्र नहीं की, उनको छोड़ के वो भागने लगे. With these series of military victories, the first section of Khaybar was completely captured, and the Jews in the smaller fortresses evacuated them and fled to the second section. यानी देखते ही देखते अल्हम्दुलिल्लाह ये जो फर्स्ट सेक्शन के 5 बड़े बड़े फोर्ट्स थे उसके ऊपर मुसलमान जो थे पूरी तरह से हावी हो चुके थे. यहूद जो हैं वो छोटे छोटे फोर्ट्स और कैसल्स में भी जो छुपे थे वो सब निकलकर दूसरे सेक्शन में पहुंच गए. The conquest of the second section of Khaybar. When the Prophet Muhammad ﷺ, along with his army, moved to this part of the Khaybar, which is also called Al-Qatibah, he laid a heavy siege to it for 14 days. अब ये जो जगह थी सेकंड सेक्शन में, एक टाउन या सिटी जिसका नाम था अल-कतीबा, उधर हेवी सीज तकरीबन मुसलमान आर्मी ने 14 दिन किया. The Jews had fortified themselves inside their forts, so he was about to use the catapults. They realized the futility of their effort, so they asked for a negotiable peace treaty. अभी वो फिर उन्होंने वही चाल चली, जाके अंदर फोर्ट में अपने आप को छुपा लिया.
तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपना फिर वही दाव यूज किया। उन्होंने जैसे ही कैटapults की तैयारी की तो यहूद को पता चल गया लाइक कि अभी तो हम हमारी ये जो फोर्स है उसमें क्रैक हो जाएगा, जीतना इन्होंने ही है। तो उन्होंने बीच का रास्ता निकाला कि कोई सुलह की जाए, कोई पीस ट्रीटी साइन की जाए। There is one point of disagreement here among historians. Was this section of Khyber within 3/4 conquered by force? Ibn Ishaq clearly states that Al-Qamus fort was conquered by force. Al-Waqidi, on the other hand, maintained that the 3/4 were taken through peace negotiations and force. If any was resorted to only to hand the fort over to the Muslims, the other 2 forts surrendered without fighting. अभी इधर mixed opinion है। तो मिक्स्ड ओपिनियन इस तरीके से है कि एक कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये जो सेक्शन ऑफ खैबर है ये वो तीनों फोर्ट के अंदर है और फोर्स से लिया गया था। और इब्ने शाह कहते हैं कि कमूस फोर्ट जो है वो फोर्स से लिया गया था और वकील अल वकीदी और दूसरा जो फोर्ट है वो नेगोशिएशन जब पीस ट्रीटी साइन हुई तो वो उसके अंदर ऑटोमेटिकली उन्होंने सरेंडर कर लिया था। तो ये मिक्स्ड ओपिनियन है, असली जो चीज है अल्लाहु आलम। नेगोशिएशंस। Ibn Abul Huqaiq was dispatched to Allah's messenger to negotiate the terms of surrender. अभी इब्न अबुल हुकैक जो है वो आए एज एन एनवॉय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नेगोशिएट करने के लिए कि सरेंडर की नेगोशिएशन टर्म्स क्या होने चाहिए। द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम agreed to spare their lives on the condition that they vacate Khaybar and the adjacent land, leaving whatever gold and silver they had in their possession. अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी कंडीशन रखी कि वो खैबर को खाली कर दें, आसपास के इलाके को खाली कर दें और अपना सोना और चांदी जो है वो छोड़ के चले जाएं, अपने जो पोजीशन है उनकी एसेट है यानी जो वो छोड़ दें। However, he specified that he would give up any commitment if they concealed anything. Shortly afterwards, the forts were handed over to the Muslims and all of Khaybar was conquered and brought under the control of Islam. Alhamdulillah. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उनका जो भी कमिटमेंट है अगर उन्होंने कुछ छुपाया है तो फिर ये नलिफाई हो जाएगा, यानी he would not give up any commitment. कोई भी कमिटमेंट नहीं देंगे अगर इन्होंने छुपाया कुछ, ऑनेस्टली करेंगे तो उनकी कंडीशंस भी मानी जाएगी। थोड़े टाइम के बाद सारे फोर्ट्स जो हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिए गए। खैबर पूरी तरह से कॉन्कर हो गया और इस्लाम और मुस्लिम आर्मी के अंडर आ गया। In spite of this treaty, Abul Huqaiq's 2 sons concealed a leather bag full of jewels and money belonging to Huway bin al-Akhtab, who carried it with him when Banu Nadir had been exiled from Medina. अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियरली कहा था कि ऑनेस्टली वो जितनी भी उनके पास एसेट्स और प्रेशियस चीजें हैं वो हैंड ओवर कर देंगे, लेकिन अबुल हुकैक के जो 2 बेटे थे उन्होंने छुपाया। क्या छुपाया उन्होंने कि एक बैग फुल ऑफ ज्वेल्स और मनी जो था जो हुए बिन अल अख्तब का था वो उन लोगों ने खामोशी से लेकर रवाना हो गए। जब बनु नदीर को जिलावतन किया गया था मदीना से तो ये जो पोजीशन थी ये उनके पास रह गई थी, तो ये पूरा उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से छुपाया और उनकी जो कंडीशन थी उसको ब्रेक किया और अपने साथ ले गए। Kinana bin Arabi, who had hidden the bag somewhere, was persistent in his denial, and so he was killed when the bag was discovered and his dishonesty was proven. Abul Huqaiq's 2 sons were killed in recompense for breaching the covenant, and Safiya, Huway's daughter, was taken as a captive. अब आप देखें कि उन लोगों ने दगाबाजी की ना, धोखेबाजी की और जो उन्होंने उनको हुक्म दिया गया था वो उसके ऑपोजिट गए। तो किनाना बिन अरबी जो है उसने कहीं पर ये बैग छुपाया हुआ था और बार बार उससे पूछा जा रहा था कि किधर है, उसने नहीं बताया तो उसका कत्ल हो गया। जब ये बैग डिस्कवर हुआ तो इनकी जो दगाबाजी है वो पूरी सामने आ गई। यानी ये ऑफ कोर्स आपको पता है माल जो है वो बहुत बड़ा फितना होता है, किसी और का माल था, कोई और छुपा रहा था और कोई और दगाबाजी करके लेकर जा रहा था। तो एंड ऑफ द डे सारी तरफ से चोरियां हो ही रही थी, आपस में एक दूसरे के साथ चोरियां हो रही थी इनकी। लेकिन जब ये सब डिसऑनेस्टी प्रूव हो गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये वाजे हो गए, तो वर्डिक्ट क्या निकला जजमेंट कि अबुल हुकैक के दोनों जो बेटे हैं उनका कत्ल कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये जो अकद है उसको तोड़ा। और फिर सफिया जो हुए की जो बेटी थी उसको एज अ बंदी बना लिया गया। आई थिंक विल हैव टू स्टॉप हियर बिकॉज टाइम अप हो चुका है। तो इफ देयर इज एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। कुछ और
डिस्कशन करना आप चाहते हैं तो इट इज़ एन ओपन फोरम, अगर नहीं तो आई विल क्लोज। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। इंशाल्लाह होती है कल मुलाकात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।